Hello, students. Good afternoon, everyone. I hope you people are doing great and online and offline. So, in the last class, we had discussed certain things with respect to our geography and what are those topics, important topics. Try to understand what I'm conveying, right? If you are thorough with the important topics, from those topics, 100% there will be question. If you read entire the geography, see geography you have to read entire, I am not saying, but first and foremost try to cover important topics. If you are thorough with the important topics which are very very useful for our UPSC prelims as well as the mains, but our what we are trying to cover the for the prelims point of view rather than the mains, right? So if you are having any doubt, you can feel free to ask the institution, or you can directly approach me here in the institution Sriraj IAS, so that I will try to help you, right? तो कल लास्ट क्लास में मैं क्या बताया था आपको, ओशियनो क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा सा स्मॉल टॉपिक आपको ब्रीफ किया था, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. That is very very important, but the thing is students are not having the quality information, right? The students, what students are saying yesterday, sir, the flights are flying in the stratosphere because हम स्टार्टिंग से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बट द स्मॉल फ्लाइट्स आर फ्लाइंग इन द ट्रोपोस्फियर आल्सो, right? One more point also you can write down. Yesterday the ozone is present in stratosphere as well as in the troposphere also. Please write down this point, online students. Ozone is present stratosphere as well as in the troposphere also. Sir, अब तो पहली बार हम सुन रहे हैं, but that is the fact, right? Sometimes that's why we are missing certain points. So next class में और upcoming class में किसी जगह एक दो point छूट गया तो भी I will try to cover it, right? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ozone present in the stratosphere as well as the troposphere. Ozone is good in stratosphere but bad in troposphere. If ozone present in troposphere, that is bad. It is going to impact on your health negatively. But when it comes to stratosphere, it tries to cover क्या सर इंटरनेशनल समिट चल गया है क्या दीपक? आई वॉज वेटिंग फॉर यू गाइस. ऑल राइट, कल एक पॉइंट मिस हो गया था, लिख लेना. Because ozone is present in the troposphere or stratosphere. Ozone is also present in the troposphere also, right? So ozone is bad in the troposphere but good in stratosphere. Please write down. कल आ जाएगा. Ozone is present only in the stratosphere? No, ozone is also present in the troposphere also, राइट? ये पॉइंट लिख लेना, ध्यान से देना. किसी पॉइंट छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में भी किसी किसी जगह आ जाएगा, आप अपडेट कराता हूँ, राइट? सो आफ्टर दैट वी हैड डिस्कशन विद द कंपोजिशन में क्या बताया था, डस्ट पार्टिकल, गैसेस, वाटर वेपर, ये बताया था. वो जगह में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया आया था, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर और लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपको लेयर्स बताया था, क्या था? ट्रोपो, स्ट्राटो, मीसो, एक्सो. एक्सो में अगेन डिवाइडेड आयनो, थर्मो में आयनो एंड एक्सोस्फीयर, राइट? ये क्या रेंज था? ट्रोपोस्फीयर 18 किलोमीटर, देन स्ट्राटोस्फीयर 50, मीसो 80, 640 एंड एबो. ये तो याद है ना, राइट? देन कम टू द ओशियोनोग्राफी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, राइट? हियर इन द ओशियोनोग्राफी we have discussed one topic, very very important topic, that is the corals. See, I will show you those corals with respect to, with the help of the map also. But कल फर्स्ट डे है तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा धीरे से समझा रहा था, राइट? जाने के बाद एक बार आपको प्रीवियस ईयर देके थोड़ा प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, राइट? तो आज मैं क्या करूंगा, ओशियोनोग्राफी में बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा, राइट? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं जो भी बोल रहा हूं इन द क्लास, प्लीज राइट ऑन नोटबुक. डोंट थिंक दैट मुझे पता है सर, मैं लिखूंगा नहीं, लिखेंगे नहीं तो फिर फील हो गया तो फेल हो जाता है लाइफ में, है ना? इतना है नारियन. दीपक गुस्सा हो रहा है क्या? नो सर, राइट? तो ओशियोनोग्राफी, मेरा नाम तो पता है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रविंदर सर है, थोड़ा याद रख लेना, कभी कभी याद काम आ जाएगा, राइट? चलो, सो ओशियोनोग्राफी, आई विल बी टुडे आई विल बी टेकिंग दी
डिफरेंट ओशंस ऑन द प्लैनेट, है ना, हमारा जमीन पर ही है ना, अर्थ ऊपर डिफरेंट ओशंस है, तो उसके फीचर्स क्या है, टोपोग्राफी क्या है, साइज आर, वी आर नॉट गोइंग इनटू वेरी डीप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो ट्राई टू हैव दिस दिस थिंग। जनरली आई डोंट यूज द पीपीटी, बट रैदर आई विल एक्सप्लेन ऑन एवरीथिंग ऑन बोर्ड। मुझे वही आदत है, कल 13-15 ईयर से मेरे यही आदत है, बिकॉज जब मैं बोर्ड ऊपर लिखता हूँ ना, आपको क्या होता है, लिखने का मन लगता है। पीपीटी में क्या करते हैं बच्चे, फोटो निकाल लेते हैं, अरे तो पीपीटी हमारा पास, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना, यू हैव टू राइट ऑन पेपर, राइट। चलो, so in oceanography means we are discussing about the oceans. How many oceans we are having? The largely five. One is Pacific Ocean. The largest ocean is Pacific Ocean. Second largest is the Atlantic Ocean, है ना, Atlantic Ocean. Third is the Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. 5 oceans, ठीक है ना. Largest is the Pacific Ocean. Now सर, कभी देखा होगा जमीन पर देखे तो आपको माउंटेन्स, हिल्स, रेंजेस, प्लेट्यूज, प्लेन, ये तो है ना जमीन पर, तो यू कैन ऑब्जर्व दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फाना, राइट। किसी जगह पे पहाड़ी में जाओ, क्या हो जाएगा आपको, माउंटेन दिख रहा है, हिल्स दिख रहा है, राजस्थान में था तो वो आरावली रेंज दिखा रहा है, ये सर थार डेजर्ट दिख रहा है, तो आप पेनिनसुलर इंडिया में आ जाओ, प्लेट्यू दिखाएगा, एंड राइट, अभी नॉर्थ गंगा प्लेन में जाओ, प्लेन दिखाएगा। सो नो बेस्ड ऑन देयर एलिवेशन यू आर मेंशनिंग, माउंटेन मींस एलिवेशन, हाइट इज मोर, दैट्स व्हाई यू से सर ये माउंटेन है, हिल है सर, रेंज, प्लेट्यू, प्लेन, मींस हाउ वी आर डिस्कसिंग। प्लेन बोले तो ये तो हाइट कुछ नहीं है और थोड़ा सा हाइट रहेगा, प्लेट्यू बोले तो हाइट रहेगा, हिल बोले तो और रहेगा, रेंज बोले तो ऐसा रहेगा, माउंटेन बोले तो ऊपर रहेगा, मींस बेस्ड ऑन देयर हाइट यू आर डिस्कसिंग, समझा, राइट। नाउ सो इन द सेम वे द ओशियंस आल्सो हैविंग सर्टेन फीचर्स, ओशियन को भी क्या हम सर्टेन फीचर्स है, वो जमीन पर जैसा फीचर्स है ना लैंड ऊपर, ऐसे समुद्र में भी है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी ओशियनोग्राफी, द ओशियंस में, राइट। यू कैन सी हियर, if you see the worldwide, right, so Pacific Ocean you can see, then Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. So first Pacific Ocean 165 million square kilometer, Indian Ocean 74 kilometer square, Atlantic Ocean, these are the important ocean. So then we are having the, you can see here, online students and offline students, इधर मैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको, या आर्कटिक, अंटार्कटिक, लार्जली पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन। आई विल शो यू, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, ठीक है ना माँ, राइट। आप इधर देख सकते हो, अरे बाप रे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं मैं आपको, मैं बोर्ड ऊपर लिखने का ट्राई करता हूं, ठीक है ना, कल जैसे मैं करता हूं, राइट। स्टूडेंट्स विल ट्राई टू लर्न द फीचर्स ऑफ द ओशियन, वो बॉटम में क्या क्या है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इधर मैं आई विल टेक फॉर एग्जांपल हियर इंडिया, राइट, इंडिया, ठीक है ना। अभी इंडिया को आप क्या करना मां, ये क्या है, ये रीजन क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल, राइट, ये बे ऑफ बंगाल है। ये साइड क्या मां, अरेबियन सी, अरेबियन सी, राइट, ये साइड बे ऑफ बंगाल है, ये साइड अरेबियन सी है। बताओ, वंस यू आर क्रॉसिंग द कोस्ट, क्रॉसिंग द कोस्ट, आर यू इमीडिएटली डिसअपियरिंग और सबमर्जिंग इन द वाटर? नो, यू आर हैविंग द बीच, बीच के बाद धीरे से धीरे से धीरे से पानी में डूबेगा हम, एट ए टाइम तो पूरा ऐसे नहीं है ना। सो वी आर हैविंग सर्टेन फीचर्स इन द ओशियन, वी आर हैविंग द प्राइमरीली, वन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, सेकंड कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, थर्ड ओशियन डीप्स,
ocean deeps. So in ocean deeps, try to understand ocean deeps. Again, we can divide it into three. That is ocean plains, ocean plains, ocean deep. Third, one, two, three. Ocean trench. Ocean trench. हाँ मैं बताता हूं. Right. I hope you are understanding. Continental shelf, continental slope, ocean deeps, उसमें again ocean plains, प्लेन जैसा आप गंगा प्लेन बोलते हैं ना, ऐसा जैसा, देन ओशियन डीप, देन ओशियन ट्रेंच. ये क्या होता है, इसका फीचर्स क्या मैं समझाता हूं. ऑलराइट, फास्ट फास्ट लिखने का कोशिश करो, ठीक है ना, सो दैट आई विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन. नाउ सी व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. फॉर एग्जांपल हियर व्हाट मा, आप इधर देख सकते हो, इधर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सम कोस्ट है ना, कोस्ट के जाने के बाद अंदर थोड़ा दूर तक आपको जमीन मिलता है, पानी में भी थोड़ा स्लोप. ये हाथ निकालता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, आप लिखने का ट्राई करो. ऑनलाइन थोड़ा स्माइल दे दो यार, गुस्सा मत करो. राइट, जब पढ़ रहे कुछ अच्छा काम करते हो, 20 माइल, है ना, इस एनर्जी आता है, बात में एनर्जी होता है ना. यस, आई कैन इन्फ्लुएंस, मीन्स माई वर्ड इज इन्फ्लुएंस टू एंटर यूर लाइफ. देखो कितना एनर्जी है, आप भी ऐसे ही है. एवरी ऑर्गेनिज्म कैन इन्फ्लुएंस अदर ऑर्गेनिज्म. यस सर, नो सर. आप तो बटरफ्लाई को इन्फ्लुएंस करते हो, इसीलिए दिल्ली को आ गया है ना दीपक. नहीं सर, इल्ले सर के, ठीक है आप, ठीक है. राइट राइट, चलो अभी मैं क्या बोल रहा हूं मां, देखो ऑनलाइन. चलो ये मान लेते कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इधर तो इतना स्लोप नहीं है ना, थोड़ा सा अंदर जाओ, स्टीप स्लोप है, जाने के बाद क्या होता है, बहुत डीप है, डीप होने के बाद इधर प्लेन है. राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द कोस्ट टू इनसाइड, you are having some land, that land is called what ma, continental shelf. क्या बोल रहा हूं, continental shelf. This is the continental shelf. So this continental shelf slope is hardly 1 degree to 5 degree, or sometime 1 degree to 3 degree. that slope होता है ना, किसी इंसान को भी ऐसा, इसको स्लोप कितना है, हार्डली 1 to 3 degree. Continental shelf. Sir, do you think that this continental shelf present in the east side? No, west side is also. West side also. Right. This continental shelf, for example, corals present on the continental shelf. लिख लेना, corals present in the on the what, continental shelf. For example, if you see Bombay High, है ना, basin, ये समुद्र में पानी वो निकालते हैं ना, क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये किधर से निकलता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ. exploration of the petrol and natural gas in the ocean, that is from the what, continental shelf. Please write down. And the rivers are carrying more sediments being deposited in the what, again continental shelf, because it is having less slope. स्लोप होता है ना, कम है, इसलिए इधर डिपोजिशन होता है. राइट, कोरल्स आल्सो प्रेजेंट, राइट, इन द कोस्ट. राइट, हियर यू कैन सी दी सी फाइटोप्लैंक्टन्स होता है ना, वो भी प्रेजेंट है. क्यों प्लैंक्टन्स प्रेजेंट दीपक, प्लैंक्टन्स उधर क्यों है, डेप्थ ज्यादा नहीं, उनको सनलाइट चाहिए ना खाना बनाने के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इधर रहना पड़ेगा वो. सी इट इज नॉट पक्का, राइट, नहीं नहीं, वो तो कोरल्स के लिए है ना, बट सर्टेन फाइटोप्लैंक्टन्स वो 100-150 मीटर में भी रह सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू, हाँ, वो वैरी होता है. इट इज नॉट दैट क्राइटेरिया सेम टू ऑल द स्पीशीज. राइट, नाउ हियर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, here even deltas also present on the continental shelf,
वर्ल्ड लार्जली डेल्टास प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. लिख लो ना, डेल्टास, कोरल्स एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स क्या मा ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अभी जो रिवर इधर फॉर एग्जांपल इधर गंगा आ रहा है, इधर महानदी आ रहा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या कर रहा है? सेडिमेंट्स दे आर डिपॉजिटिंग इन द कोस्ट. ग्रेजुअली दे आर मोर डिपॉजिटेड ओवर द व्हाट? कॉन्टिनेंटल शेल्फ. है ना? डिग्री देख लो, 1 डिग्री टू 5 डिग्री. राइट नाउ this continental shelf, for example here, if you carefully observe the, देखना मा, this one what, South America coast, what's this side Andes mountains are present. So wherever coast continental shelf के साइड में किसी जगह माउंटेन है ना, तो उसका साइज विल कम डाउन, नैरो हो जाएगा. क्यों? बिकॉज दैट प्लेस इज बीइंग ऑक्युपाइड दिस माउंटेन. ये एग्जाम में आया था यूपीएससी में. So if mountains are present parallel with the continental shelf, the width of the continental shelf will be come down. But when it comes to North America, east side, there is no mountain. That's why continental shelf is width more, because there is absence of the mountains. लिख रहा नहीं आप? मुझे देख रहा है, धुआंधार नहीं चल रहा है इधर. हाँ, लिखते ही रहना है बस. राइट सर, समझ हुआ ना वो पॉइंट? देन कितना टाइम हो रहा है? हाँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ. देन वी आर हैविंग द कॉन्टिनेंटल स्लोप. नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या आ जाएगा मां हमको कि कॉन्टिनेंटल स्लोप. कॉन्टिनेंटल स्लोप, स्लोप बोलो तो समझ हो रहा है ना? स्लोप स्लैंटिंग है, तो इधर का कॉन्टिनेंटल स्लोप का डिग्री कब से कितना हो सकता है पता ना? रीसेंट रिसर्च 5 डिग्री टू 60 डिग्री. So tell me now, can you deposit anything on the continental slope? No, it is very difficult. Continental slope में रहने का ट्राई कर रहा है, बट पूरा पानी आ रहा है, लेके समुद्र में लेके चल जा रहा है. You can deposit some certain materials on the continental shelf, but when it comes to continental slope, the deposition takes very less. बहुत कम होता है, because steep slope is present. 5 डिग्री टू 60 डिग्री तक रहता है. स्टीप है ना कॉन्टिनेंटल स्लोप, नाम में ही होना है स्लोप. राइट नाउ यू कैन सी हियर. राइट नाउ आफ्टर दैट यू आर हैविंग दी, अभी हमारा क्या हम नेक्स्ट टू ओशियन डीप. देखो इधर शेल्फ इतना ही जगह है, स्लोप इतना जगह है, रिमेनिंग कितना जगह है? ओवर 65% टू 70% ओशियन डीप्स. ओवर 65 टू 70% क्या मा? ओशियन डीप्स. ये ओशियन डीप्स में डीप प्लेन्स ओवर 70%, पूरा में वो डीप ओशियन डीप में ओवर 70% क्या होता है? फिर प्लेन होता है. जैसे नॉर्थ गंगा प्लेन है ना, ऐसा होता है पूरा प्लेन. देयर आर सर्टेन ओशियन डीप एंड ओशियन ट्रेंचेस आर प्रेजेंट. सर ये क्या होता है? समझाता हूं. ओशियन डीप को ओशियन ट्रेंच को क्या डिफरेंस है? देखो किसी जमीन में किसी जगह अंदर थोड़ा होल तरह होता है ना. फॉर एग्जांपल ये मान लो, ये क्या मा? ओशियन डीप. राइट, सो इट इज लाइक क्रैक्स, एक क्रैक तरह है ना. राइट, तो हियर डीप एंड ओशियन ट्रेंच क्या हुआ मा? इसमें डिफरेंस क्या लग रहा है? ये ज्यादा डीप है, ये कम है. इधर वाइड देखो ज्यादा है, इधर कम है. राइट, दैट इज द डिफरेंस. ओशियन डीप को ओशियन ट्रेंच को. ओशियन डीप एग्जाम में आया था, प्लीज राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स. ओशियन ट्रेंच, ओशियन डीप. ये देखो मां, पहले ये देखो आर्यन दीपक, ये देखो ना, ये क्या हो रहा है? इधर देखो कौन सा ज्यादा लग रहा है? ये वाइड ज्यादा है, ये कम है. फिर ये देखो, ये डीप देखो, ये डीप देखो, ट्रेंच ज्यादा है. मेरियाना ट्रेंच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशियन में है. समझा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. राइट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन क्या मा? ओशियन डीप, ओशियन ट्रेंच. सो ट्रेंच इज longer than the what? Deep.
दोनों साइड में ये वाइड है ना, ये देख लेना, ये वाइड है, इधर नैरो है, ठीक है ना मां? अरे यार, बहुत बच्चा को ये समझ नहीं आता है। ओशन डीप पूछो, ओशन ट्रेंच पूछो, राइट? ये ट्रेंच होता है, ये डीप होता है, राइट मां? एनी डाउट? राइट। now how you are having the mountains, hills on the land, in the same way you are having certain features on the in the ocean. Those are what ma? Ocean ridges. Ocean ridge, वो ocean ridges. ocean ridges क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर एक प्लेट है ना मां, इधर एक प्लेट, एंड हियर आल्सो वन प्लेट. व्हेन दे आर मूविंग अपार्ट, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी दो प्लेट है मेरा, राइट? व्हेन दे आर मूविंग अवे, व्हाट हैपेंड? इसमें से नीचे होगा ना, एनर्जी ऊपर आ जाएगा, लिक्विड ऊपर आ जाएगा. सो हियर दैट विल बी डिपॉजिटेड हियर, राइट? ऐसा डिपॉजिट हो जाएगा. तो दैट माउंटेन तरह है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? रिड्ज. हाँ, ऊपर आता है ना, हिल तरह होता है ना, उसको रिड्ज बोलते हैं. रिड्ज इंडिकेट्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 प्लेट्स. किसी जगह में रिड्ज है बोले तो वो जगह में 2-3 प्लेट्स है, इधर 2 प्लेट्स और 3 प्लेट्स. किसी प्लेट में रिड्ज नहीं है किसी समुद्र में, तो उसमें ये की सिंगल प्लेट है, राइट? पैसिफिक ओशियन नो रिड्ज, अटलांटिक ओशियन रिड्ज, एंड इंडियन ओशियन रिड्ज. लिख लेना, राइट? ridges are like mountains in the ocean. Ridges indicates is a combination of 2 to 3 plates. 2 to 3 plates. 2 to 3 plates. The largest ridge in the world is the Mid-Atlantic Ridge. Largest क्या मां? In the world is the Mid-Atlantic Ridge. The length is 14,900 किलोमीटर. कितना दीपक? 14,900 किलोमीटर पड़ा है. एंड विड्थ कितना है? 960 किलोमीटर. 14,900 किलोमीटर क्या है? लेंथ. विड्थ कितना है? 960 किलोमीटर, राइट? मिड अटलांटिक रिड्ज. So ridges are present in the India. लिख लो सेकंड. Ridges are present in the Indian Ocean as well as the Atlantic Ocean. Then next point क्या लिखना है? Ridges are absent in the Pacific Ocean. ठीक है ना सर? Any doubt sir? So now tell me. So ridges are forming in the convergent or divergent? क्या होता है? Right? When two plates are colliding, ridges are not forming. Ridges are forming when they are moving away. ऐसा खींच रहा है, जब खींचो तो क्या आ जाएगा? नीचे से क्या हो जाएगा? मैग्मा आ जाएगा. फ्रॉम द एस्थिनोस्फीयर बोलते हैं ना, ये दूर होना चाहिए. कल आ जाएगा ridges are forming at the convergence of the plates. No, ridges are forming at the divergence of plates. Divergence of plates, constructive plates. Convergent is the destructive plates. हिमालय क्या? Convergent, destruction. Convergent क्या होता है? Creation क्या होता है? When plates are moving away. Any doubt? Right, done. 900 किलोमीटर. वो रिड्जेस का, वो मिड अटलांटिक रिड्ज का.
The world largest ridge is the mid Atlantic ridge that is present in the Atlantic Ocean. Right? क्लास चल रहा है ना अच्छा सा, जोश आ रहा है ना. 960. Done? Anything else? Are you expecting anything from me? And लिखो, mid Atlantic ridge in S shape. Mid Atlantic ridge in S shape. Mid Atlantic ridge in S shape in the ocean. ठीक है ना, एक बार देख लो क्या लिखा है. कुछ रहना तो चाहिए तो बताओ, मैं आई विल हेल्प यू. हाँ, क्या अरेबिया किधर से आते हैं? इंडियन ओशियन को तो है ना, फिर अरेबिया अलग कैसा होता है? हम तो ओशियन बारे में पता कर रहे हैं ना. सी, एक बात मान लो, अरेबियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल इज द टू आर्म्स ऑफ इंडियन ओशियन. मैं इंडियन ओशियन हूँ, एक हाथ बंगाल, एक हाथ अरेबिया, तो इंडियन ही ओशियन है ना, है ना वो. देख लेना एक बार, देख लिया तो आपको इजी हो जाएगा. थोड़ा वो स्ट्राटोस्फीयर वो थोड़ा कुछ बोल रहा था. उसका पहले कुछ बोल रहा था मैं. राइट. डन. और कुछ तो नहीं है ना. राइट. अभी आपको क्या करूंगा, एटलीस्ट थ्रू मैप से दिखा लूंगा, ठीक है ना माँ. ये किधर है, इसको कैसे छोटा करते हैं. हाँ, देखो, वहाँ इधर ही ऐसा देखा रहे बोलो तो. हाँ, इधर देखो माँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, अबैसल बेन, ओशियानिक ट्रेंच, है ना. थोड़ा चाहिए तो लिख कर लेना. राइज कुछ उठ रहा है प्लेट, राइज बोल तो नाम क्या है, इंडिकेशन इज राइजिंग. ये मत पढ़ो, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड अबैसल, इसमें फीचर्स है पूरा, ये अलग नहीं है. हम ओशन डीप पढ़ा है ना, ओशन डीप में डीप सी प्लेन्स एंड ओशन डीप एंड ओशियानिक ट्रेंच, है ना. डायग्राम चाहिए तो ले लेना. फिर रिड्ज क्या होता है आपको आ गया इधर, ऑनलाइन देखना माँ. राइट. देखो, शेल्फ को स्लोप को इतना ज्यादा नहीं होता है, 60 डिग्री ज्यादा हो गया, बट आपको समझाने के लिए वो मैप, ठीक है ना. और अदरवाइज इफ यू आर हैविंग, यू कैन सी. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हाँ. Then we will be taking ocean currents topic. Very very important, ocean currents, है ना. आपको फाउंडेशन से अलग कुछ मिल रहा है इधर क्लास में? वही है एज इट इज, किया ही नहीं. आर्यन आप, कुछ अलग कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सेम टू सेम एज इट इज है. अरे अच्छा ठीक है. हाँ, ठीक है. ये क्या रेड, रेड में आ गया ना. अब चिंता मत करो, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना. ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स, करंट करंट शाक लगेगा आपको. सर्विस आने के बाद क्या हो जाएगा, मैं आपको काम को पूरा शाक हो जाएगा. क्या करिए आर्य दीपक है, आग लगा के छोड़ दिया बच्चा है. ओशियन करंट्स, ठीक है माँ. चाय दे तो अच्छा लगता है, बट क्या करेंगे. उसको मैसेज करता हूँ, उसको मैसेज करता हूँ. हम्म हम्म, हम्म.
चलो, ओशन करेंट्स क्या पढ़ाऊँ मैं उसमें? अच्छा पढ़ाता हूँ। ये बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, 100%। मान लो मेरा बात, राइट। ओशन करेंट, चलो अभी ये तो करेंट्स, ओशन क्या, ओशन तो पता है, बट करेंट्स क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिसिटी जाता है क्या अंदर? नहीं है ना? ओहो बटर, ठीक है। ओशन करेंट्स बोलो तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या बोल रहा हूं, लिख लो, लिखो। ओशन करेंट्स डेफिनेशन लिखो मा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, the large volume of water, the large volume of water is moving, is moving, the large volume of water is moving in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction is called, in a particular direction is called, particular direction is called kya ma? Ocean currents. So this water is moving in particular direction from north to south, साउथ टू नॉर्थ, ये प्रॉपर डायरेक्शन में चलता ही रहता है, इरेगुलर नहीं होता है। ओशियन करेंट्स मूव्स ऑलवेज इन ए डेफिनेट चैनल एंड दैट इज द लार्ज वॉल्यूम, इट इज नॉट स्मॉल। हमेशा देखो समुद्र में पानी घूमता रहता है, क्यों घूम रहा है हम बताते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर द ओशियन करेंट्स, लिखो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओशियन करेंट्स, first one, factors in relation to earth nature, factors in relation to earth's nature, earth's nature, factors in relation to earth nature। a, उसमें लिखो a, gravitational force, gravitational force, gravitational force। b, deflective force, deflective force due to earth's rotation, deflective force due to earth's rotation, deflective force due to earth's rotation, due to earth's rotation, right। ये किसमें लिखा था आप? फैक्टर्स इन रिलेशन टू अर्थ सरफेस। देन सेकंड, फर्स्ट हो गया फैक्टर्स रिलेटेड टू अर्थ, सेकंड एक्स ओशियानिक फैक्टर्स, एक्स ओशियानिक फैक्टर्स, एक्स ओशियानिक फैक्टर्स, उसमें लिखना ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टू, विंड फोर्स, विंड फोर्स, वन के लिए क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टू, विंड फोर्स। थ्री, प्रिसिपिटेशन। फोर, इंसोलेशन। थ्री क्या था? प्रिसिपिटेशन। फोर, इंसोलेशन। देन थर्ड, एक हो गया, दो हो गया, अभी थर्ड, सब ओशियानिक काजेस, सब ओशियानिक काजेस आर फैक्टर्स, काज फैक्टर्स सेम, सब ओशियानिक फैक्टर्स। उसमें लिखना ए, प्रेशर ग्रेडियंट, ए, प्रेशर ग्रेडियंट। टू, सैलिनिटी, टू, सैलिनिटी, ये क्या होता? प्रेशर ग्रेडियंट। बी, सैलिनिटी। थ्री, डेंसिटी, डेंसिटी। फोर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, melting of ice। फोर, shape of continents and coast, shape of continents and coast, shape of continents and coast। फाइव, seasonal variations, F, फाइव or F, seasonal variation। Then sixth one, bottom topography, bottom topography।
and the last point, temperature differences. Bottom, topography, and last point, temperature differences. Done? Yes, sir. Now if you see oceanic currents, है ना मा, so temperature, salinity, density, right, wind movement, है ना, जो जमीन में होता है ना, पानी में लैंड फॉर्म्स, दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग फॉर देयर मूवमेंट. वो कैसा होता है मैं समझाता हूं. ये तो रीजन. एंड वन मोर, डिफ्लेक्टिव फोर्स. व्हाट इज ए डिफ्लेक्टिव फोर्स? डिफ्लेक्टिव फोर्स, इट इज आल्सो हियर कॉल्ड कोरियालिस फोर्स. कोरियालिस फोर्स. ये कोरियालिस कुछ नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम था कोरियालिस, उसका नाम ऊपर कोरियालिस फोर्स आया था. व्हाट इज कोरियालिस? फॉर एग्जांपल मान लो हियर एक जमी है, right, in the northern hemisphere it tilt, it deflect in the right direction, and in the southern, in northern hemisphere, ये क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? ये क्या होता है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो रहा है विंड, इधर क्या होता है? लेफ्ट डायरेक्शन में होता है. लिख लेना, ये राइट, ये लेफ्ट. ये बहुत बार कोरियालिस फोर्स आपको प्रीलिम्स मेंस में आया था. Coriolis force. Coriolis force is also called here deflective force. Right? Deflective force. Right? In the northern hemisphere it is in right direction. When it comes to in the southern hemisphere it is in left direction. How they are influencing, and try to read and try to understand. You know the directions of the directions. For example, लिख लेना माँ, ये क्या होता है? Dear students, try to understand. This is the north and this is the south. ये क्या हो जाएगा माँ? East, west. Yes sir, no sir? Yes. Right? ये क्या हो रहा है? North, east, south, west. Now, this direction is north east. ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. सी सेट नहीं है वो, डायरेक्शन मूवमेंट. ये क्या हो जाएगा मां? साउथ ईस्ट. ये डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट. ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट. लिख लेना, देखने में इजी लग जाता है. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चा गलत करके आया जाता डायरेक्शन में. मैं पहले इसको डायरेक्शन बता रहा हूं, बीच में फिर क्यों समझाऊं. ठीक है ना? पेन किधर रखा? ये तो समझ हो गया ना मां? राइट. अभी हम क्या करते हैं? बेस्ड ऑन टेम्परेचर ओशन करंट्स आल्सो टू टाइप्स. लिखो, बेस्ड ऑन टेम्परेचर ocean currents can be classified. Ocean currents can be classified. Ocean currents can be classified. Ocean currents can be classified into two: warm water or warm current, and second, cold current. cold current. लिखो, warm current moves from equatorial region to polar region. Equatorial region to polar region. Then cold current moves from polar region to equatorial region.
पोलर रीजन टू इक्वेटोरियल रीजन, समझ हुआ ना? राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिफ्लेक्टिव फोर्स इज द फोर्स, deflective force is the force, deflective force is the force in which wind direction changes. Please write down, online students. Deflective force is the force in which wind direction changes. This wind direction is the right, RIGHT. This wind direction is the right in the northern hemisphere. Right को underline करो, right in the northern hemisphere, and left in the southern hemispheres. Left in the southern hemisphere. Right? समझ हुआ? Right. This deflective force is also called. This deflective force is also called as, क्या बोलना है? Coriolis force. Very good. Please underline. समझा? नेक्स्ट पॉइंट, equatorial currents moving from east to west direction in the ocean, east to west direction in the ocean, east to west direction in the ocean, but counter equatorial currents, underline करो, counter equatorial current moves from, वो क्या बोला था? इक्वेटोरियल करंट ईस्ट टू वेस्ट, ये अपोजिट, वेस्ट टू ईस्ट. काउंटर इक्वेटोरियल करंट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. राइट? समझा ना? नाउ अभी क्या करना है? नाउ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन लिखो. अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन कैन बी डिवाइडेड into two. Atlantic Ocean can be divided into two. North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean. North Atlantic Ocean and South Atlantic Ocean. Right? अभी North Atlantic Ocean लिखो. North Atlantic Ocean में क्या करंट्स आ जाएगा? प्लीज राइट डाउन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. In North Atlantic Ocean, we are having what ma? One is North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean. Now try to understand North Atlantic Ocean. You are having the one current, equatorial current. Try to write North equatorial current. Second, Antilles current. 3, Florida current, and 4, Gulf Stream. 5, North Atlantic Drift. Then 6, लिख लेना मा, North Atlantic Drift. Then Norwegian current, 7, Canary current,
कैनरी करंट, देन 8, ये क्या है, ग्रीनलैंड करंट, ग्रीनलैंड करंट, 9 लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट। प्लीज लिख लेना। इतना मैं भी थोड़ा चाय पी लेता हूं, थोड़ा वीकनेस है इसीलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चाय पी रहा हूं, आप भी पी लेना मेरा साथ। ठीक है ना, मैं एक बार देख लेना। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट, साउथ अटलांटिक ओशियन करंट, पैसिफिक ओशियन करंट सेम होता है बट नाम चेंज होता है, ट्रस्ट में। इसलिए ये ओशियन करंट को अच्छे से पढ़ेंगे हम। वी विल इन्वेस्ट टाइम लाइक एनीथिंग, है ना। थोड़ा देख लेना। हाँ, एंटिलिस, ANTILLES, ANTILLES। हाँ हाँ, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, DRIFT। बताता हूँ, अभी स्टार्ट ही नहीं किया, नाम ही बताया हूँ, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। थैंक यू, बढ़िया है चाय। ना वीक, थोड़ा बुखार है, वीक फीवर है, इसलिए थोड़ा मेरा एनर्जी आप देखा नहीं, नहीं तो वो सीन करंट तरह होता, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। मैं सोचा आप आया नहीं तो मैं फिर आ रहा नहीं, आ जाओ तो डुम्मा इल्ले। हाँ ज्योग्राफी में आ जाएंगे। these topics are these uh, topics are very very important, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का 50% जीएस हो गया, अच्छा सा ढंग से पढ़िया, तो नहीं तो भाड़ में जा, हम क्या करेंगे। जाता रहता है, आता रहता है। ठीक है ना माँ, ऑनलाइन ये लिख लिया माँ। नेक्स्ट ये भी लिख लेना, साउथ अटलांटिक ओशन लिख लेना, देन आई विल एक्सप्लेन देन, है ना माँ। एक जगह लिख लिया तो पहले नॉर्थ अटलांटिक लिखा हूँ और साउथ अटलांटिक भी लिखा दूँ, पहले नॉर्थ अटलांटिक लिखा कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन पहले नॉर्थ अटलांटिक खत्म कर देते, चलो। राइट, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इमेजिन करो, सी आई कांट ब्रिंग ओशियन टू हियर। हम थोड़ा इमेजिन करना, हाँ समुद्र हमारे पास है, मेरा हाथ में है, मेरा आंखी में है, दिमाग में है, जलना है क्या बटरफ्लाई सर। राइट, तो अभी हम समुद्र को क्या लेते हैं, ठीक है ना माँ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला है ना, ये सदर्न हेमिस्फीयर। राइट, अभी हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये क्या कौन सा करंट था, इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ में गया तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ में है, साउथ में ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, साउथ इक्वेटोरियल करंट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेटोरियल करंट मूविंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, right, east to west. So when they are moving from the east to west, they are moving in the influence of the trade winds. Trade winds is very very important for the origin of the ocean currents. समझ हो रहा है सर, ऑनलाइन सर। so ocean currents they move in the influence of the which winds ma, trade winds. Please write down this point, right? Now they are moving from the east to west, बट इधर क्या होता है ना, ब्राजील का आने के बाद ये माउंटेन होता है ना इधर, इसको लग जाएगा, लग जाने के बाद इसको डिवाइड हो जाएगा, एक नॉर्थ एक साउथ, समझा ना। एक इधर जमीन होता है ना, अब फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, ठीक है ना, अभी ओशन करंट आ गया, आगे इसको लगा है, सीधा कट करके जाएगा क्या, नहीं है ना। सो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक दो ब्रांच हो जाएगा, एक नॉर्थ जाएगा एक साउथ जाएगा। सो हियर आल्सो सेम। सो व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एक छोटा सा जमीन आ जाएगा इधर,
वेस्ट इंडीज बोलते हैं ना, इधर आ जाएगा। आइलैंड्स इधर आने के बाद अगेन डिवाइड हो जाएगा। वन इज द व्हाट मा एंटीलस करंट एंड अदर वन इज फ्लोरिडा करंट। डायग्राम नहीं काट रहे हो, काटते लिखना है उसको, राइट। एंटीलस करंट एंड फ्लोरिडा करंट। तो ये की पिक्चर में इसको निकालने के मैं कोशिश करता हूं, राइट। ये क्या था मां, राइट, इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये क्या है, ये करंट एंटीलस, ये क्या है फ्लोरिडा, ये जमीन है ना ये। सो इसको सराउंडिंग एक ईस्ट साइड एक वेस्ट साइड से चल रहा है। ऊपर जाने के बाद इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको होता है ना, गल्फ ऑफ मेक्सिको बाद इधर कन्वर्ज हो जाएगा। देन यू आर कॉलिंग व्हाट, गल्फ स्ट्रीम। इसको क्या बोलना है अभी, गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम when they are moving along the eastern coast of the what, नॉर्थ अमेरिका। इधर ग्रीनलैंड है ना, इधर ट्रंप का ग्रीनलैंड अभी झगड़ा कर रहा है। ईस्ट साइड से वेस्ट साइड से और दो करंट आता है, ईस्ट साइड से ग्रीनलैंड करंट, वेस्ट साइड से लैब्राडोर करंट। ये ग्रीनलैंड एंड दिस साइड व्हाट मा, लैब्राडोर करंट, राइट, right. So this Gulf Stream moving to the northward, but when they are reach to here from the north, from the Greenland, you are Greenland से दो करंट आ जाएगा, एक Greenland, other one is the Labrador. Greenland and Labrador current is cold current. Please write down. Greenland and Labrador is cold current because they are coming from the Arctic Ocean. राइट, नाउ क्या हो जाएगा, इधर कन्वर्ज हो गया ना। व्हेन दे कन्वर्ज दिस वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, दैट इज द गल्फ स्ट्रीम एंड ये क्या होता है, ग्रीनलैंड एंड लैब्राडोर करंट कन्वर्ज होता है ना। सो डिफरेंट टाइप ऑफ आई मीन डिफरेंट contrasting ocean currents are converging. When contrasting ocean currents are converging, here air mass will occur, temperate cyclones occur. क्या हो जाएगा, अभी ये पानी में क्या जा रहा है, फिशेस है, प्रॉन्स है, अदर स्पीसीज है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये मछली हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम सो जाएगा ऐसा। दे गो अंडर द सबकॉन्शियस प्रोसेस। क्या बोल रहा हूं, सबकॉन्शियस। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो आर्यन, क्लास में एसी में है, सडनली आपको टेम्परेचर गर्मी में निकल गया, क्या हो जाएगा, चक्कर आके पड़ जाएगा, बाद में फिर उठेगा। ऐसा होता है मछली को भी। अभी हमारा लोग क्या कर रहा है, अरे मछली तो मर गया, जाके पकड़ता है, बट बाद में फिर उठेगा वो। इसीलिए फिशिंग इंडस्ट्री इधर डेवलप हुआ है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिशिंग इंडस्ट्रीज डेवलप्ड वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स आर कन्वर्जिंग। समझा दीपक, मछली खाते हो ना, हाँ आप आर्यन, मैं भी वेजिटेरियन हूं, मैं वेजिटेरियन, नॉन वायलेंस, गांधी का प्रिंसिपल है, राइट। समझ आ रहा है ना सर। नाउ इधर से क्या हो रहा है, मैं ये साइड से वेस्टर्लीस, हियर वेस्टर्लीस ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ये पानी को क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये पानी को क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। विंड इज ब्लोइंग, इधर तो ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, बट इधर क्या कर रहा है, वेस्टर्ली से ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ये पानी इधर मूव करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो व्हाट, वार्म करंट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट मा, वार्म करंट। समझा। नाउ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जा रहा है, वेस्टर्ली वजह से जा रहा है। इधर क्या आ जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा, नॉर्वे के पास फिर बाइफरकेट हो जाएगा। इधर नॉर्वे है ना, नॉर्वे इधर ये ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको क्या करंट बोलना है, नॉर्वेजियन करंट। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नीचे ऐसा आ रहा है, तो इधर आने के बाद एक कैनरी आइलैंड होता है, कैनरी आइलैंड को स्ट्राइक कर दिया ना, कैनरी करंट। नाम ही पूरा करंट है ये, कैनरी। इट इज ए कोल्ड करंट।
Norwegian current is also warm current. Please write down warm and cold currents has been asked couple of times in your prelims exam. If you are thorough with the Atlantic currents, then Pacific current is done. Trust me. आपको पढ़ने का जरूरी भी नहीं है, इतना मैं इजी कर देता हूं टॉपिक को, थोड़ा पेशेंस रखो प्लीज। राइट, अभी सुनो मां, एक बार फिर रिपीट करता हूं। इक्वेटोरियल करंट क्या हो रहा है मां? ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। इधर क्या हो रहा है? ब्राजील को आगे जमीन को लग गया, एक नॉर्थ हो रहा है, एक साउथ हो रहा है। नॉर्थ को पढ़ लेते हैं, नॉर्थ तो अगेन इधर वेस्ट इंडीज आइलैंड को क्या हो रहा है? अगेन ये जमीन है ना, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, ये ईस्ट साइड जा रहा है, इसको एंटीलस बोलते हैं। वेस्ट साइड जा रहा है, उसको फ्लोरिडा बोलेंगे। इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको आने के बाद दोनों कन्वर्ज हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? गल्फ स्ट्रीम बोल रहे हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या कर रहा है? नॉर्थ अमेरिका से ईस्ट साइड से मूव हो रहा है। इतना में ग्रीनलैंड से क्या दो करंट्स आ रहा है, वन इज द ग्रीनलैंड करंट एंड लैब्राडोर करंट। अंडर द वेस्टर्लीज क्या हो रहा है मां? दे आर मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। देन क्या बोलना है इसको? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अगेन नॉर्वे के पास आ जाएगा, अगेन ड्रिफ्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नॉर्वेजियन करंट। एंड अदर वन इज द सेम, ऐसा नाम आ जाएगा। कैनरी के आने के बाद कैनरी कोल्ड करंट। सी, कैनरी कोल्ड करंट इज फॉर्मिंग ड्यू टू अपवेलिंग। अपवेलिंग, ये अपवेलिंग क्या होता है पता है ना? समटाइम्स यू माइट बी ऑब्जर्विंग इन द वाटर, देर आर सम ड्रॉप्स नीचे से आता रहता है गंदा पानी, उसको नीचे ठंडी होता है ना, उसको अपवेलिंग बोलते हैं। व्हेनेवर अपवेलिंग इज अकरिंग, हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग रिलीज्ड। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिलीज्ड, फॉर एग्जांपल क्या क्या दीपक बटरफ्लाई के लिए क्या हो गया था? एक कैनरी आइलैंड को फंस गया है, क्या दीपक? जाने के बाद क्या इधर अपवेलिंग हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट निकल रहा है, क्या करेगा? भाग के आ जाएगा, सर वो गंदा है टूरिस्ट को जाने के लिए। बट रीजन क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड, अपवेलिंग। एंड हियर व्हेनेवर अपवेलिंग इज अकरिंग, प्लैंक्टन्स आ जाएगा नीचे से। वो प्लैंक्टन्स आर गुड फॉर द फिश, फिश खाएगा, न्यूट्रिएंट्स रिच हियर। फाइनली इट विल मर्ज विद द इक्वेटोरियल करंट, राइट? बस सिर्फ एक ओशन करंट का ढंग से पढ़ो, रिमेनिंग इज वेरी इजी। हाँ बस इतना ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, दे आर मूविंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, ऐसे ही घूम रहा है। मैं खड़ा था वो सुबह देख रहा था, पहले आप तो नोट्स बना लो, मैं मैप करा तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा ना आपको। फिर अरे यह मैप तो ठीक है, बट आप लिखो तो कुछ दिमाग में चढ़ेगा। आपका हार्ड वर्क करो पहले, बाद में तो मैं समझाता हूँ, मैप तो निकालता हूँ, बट इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। फिर अरे वेरी इजी है ऐसा लगेगा, ये है ना माँ? चलो पहले आप बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेटोरियल करंट इज वार्म और कोल्ड? लिख लो, उधर ले है ना किसी जगह, इक्वेटोरियल करंट वार्म। इक्वेटोरियल करंट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, जा रहा है। डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, डिवाइडिंग। हाउ मेनी? एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल, अगेन नॉर्थ इक्वेटोरियल क्या करंट? डिवाइडिंग इनटू टू, वन इज एंटीलस करंट, फ्लोरिडा करंट, दे आर आल्सो वार्म। एंटीलस करंट, फ्लोरिडा करंट इज आल्सो वार्म, समझा? देन दे आर कन्वर्जिंग वेयर? नियर गल्फ ऑफ मेक्सिको। देन क्या बोलना है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म और कोल्ड? वेरी गुड। नाउ गल्फ स्ट्रीम क्या कर रहा है? ईस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका से जा रहा है। इतना में वो क्या हो रहा है? ऊपर से ग्रीनलैंड से दो करंट आ रहा है, ग्रीनलैंड करंट ईस्ट साइड, वेस्ट साइड से लैब्राडोर, दे आर कन्वर्जिंग, सो दे आर कोल्ड करंट। ग्रीनलैंड एंड लैब्राडोर इज द कोल्ड करंट, right? Under the influence of the westerly, they are moving from the what? West to east in the name of North Atlantic drift, right? समझा ना? नहीं तो नॉर्थ अटलांटिक करंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन नॉर्वे के पास पहुंच गया अभी, अगेन उधर क्या लगने के बाद एक डिवाइड हो गया, एक नॉर्वेजियन करंट दैट इज वार्म, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो वार्म। एक नीचे आ रहा है, कैनरी आइलैंड्स के पास का आ जाएगा, उधर अपवेलिंग हो जाएगा। अपवेलिंग होने के बाद क्या होता है? उसको क्या बोला है? कैनरी कोल्ड करंट। फाइनली मिक्स अप विद द, राइट? इन जनरल ट्राई टू अंडरस्टैंड
Generally ports has to be closed in the Norwegian region, because in the winter season में क्या हो जाए तो कोल्ड ठंडी है, बट तो पोर्ट्स क्लोज होना चाहिए ना, बट क्लोज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? नॉर्वेज, वेरी गुड, नॉर्वेजियन करंट जा रहा है। नॉर्वेजियन करंट क्या है? वार्म है, वो वार्म से क्या होगा, द कोल्ड, द स्नो इज मेल्टिंग, नहीं तो पूरा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा उनको। समझा? एनी डाउट माई हियर? आप एक बार देख लो, फिर साउथ अटलांटिक करंट कर दूंगा, देन मैप दिखाऊंगा आपको। अभी तो याद है ना? अभी कर सकते हो क्या नॉर्थ अटलांटिक करंट को बिना देख के निकाल सकते हो आप? करो भाई, फिर देखता हूं। आपको एक पेपर पर लिखो ना कुछ, एक पेपर पर बिना देख के एक ड्रा करो। इधर नहीं देखना, मेरे को नहीं देखना, आप सीधा उधर ही देखना है। ये एक आ गया है ना, रिमेनिंग वेरी इजी है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट, यू कैन आल्सो ड्रा दी नॉर्थ अटलांटिक करंट, राइट? नॉर्थ अटलांटिक करंट को जो करंट से था ना, ड्रा करके मुझे शेयर करो, आई विल सी योर आंसर नाउ, राइट? मैं आपको नंबर भी शेयर किया, अभी तक कोई कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, तो मैं क्या करूं, राइट? Online students, please draw the North Atlantic current. Just share so that I will help you. बिना देख कर फास्ट फास्ट करो, टाइम नहीं है हमारा पास। ठीक है, बस इतना ही आप भी लिखा, बस इतना ही है। और क्या है सर आपका सर? हम्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सी हाउ ऑफलाइन स्टूडेंट्स आर ड्राइंग एंड एक्सप्लेनिंग सर्टेन थिंग्स, है ना? आप भी ऐसा करो माँ। देखो, ड्रॉन बाय द दीपक, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, बस इतना ही है। पैसिफिक भी ऐसे ही रहेगा, देगा आप तो, ठीक है ना माँ? नेक्स्ट क्या करेंगे? साउथ अटलांटिक करंट, ठीक है ना माँ? साउथ अटलांटिक, अटलांटिक करंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, साउथ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट,
लिखो साउथ अटलांटिक में क्या है, इक्वेटोरियल करंट। साउथ लिखो साउथ अटलांटिक करंट में, साउथ अटलांटिक ओशियन में साउथ अटलांटिक करंट, साउथ अटलांटिक करंट उसमें क्या है, वन इज इक्वेटोरियल करंट, वो नॉर्थ था, ये क्या बोलना है, साउथ, साउथ इक्वेटोरियल करंट। टू ब्राजीलियन करंट, मैं समझाता हूं अभी तो नाम लिखा रहा हूं सिर्फ। सेकंड ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट। थर्ड फाल्कलैंड करंट, ये क्या था, साउथ इक्वेटोरियल करंट। टू क्या मां, ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट। थर्ड क्या था, फाल्कलैंड करंट, फाल्कलैंड करंट। फोर, उधर क्या बोला था, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इधर क्या बोलना है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। एंड फाइव क्या मां, फाइव क्या बोलना है, हाँ, बेंगविला करंट, बेंगविला करंट, बेंगविला करंट। बस इतना ही कमी होता है इसमें। हाँ? हम्म हम्म ठीक है ना, डन। नाम बताओ क्या क्या करेंट है इसमें। वन इज साउथ इक्वेटोरियल करंट, देन ब्राजीलियन करंट, देन दीपक बता रहा नहीं अब, देन फाल्कलैंड करंट, कम अगेन, फाल्कलैंड करंट, देन साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट और साउथ अटलांटिक करंट, देन बेंगविला करंट। अभी ये साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म, ब्राजीलियन करंट वार्म, फाल्कलैंड कोल्ड, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म, देन बेंगविला इज द कोल्ड, बेंगविला इज द कोल्ड। हाँ 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 हाँ, वो इसलिए लिखा है ना, अपवेलिंग से हो रहा है। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आया, ठीक है। साउथ अटलांटिक करंट में साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राजीलियन करंट, फाल्कलैंड करंट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दैट इज द वार्म, देन बेंगुला, ठीक है। अब जैसा मैं बोला ऐसे ही करेंगे। देखो माँ, ये क्या बोला था, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटोरियल करंट है ना, ब्राजील के पास इधर अटक गया ना, इसको साउथ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे, है ना। ये ब्राजील कोस्ट के साथ चल रहा है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्राजीलियन करंट। इतना में अंटार्कटिक है ना, इधर अंटार्कटिक के पास एक कोल्ड करंट आता है, इसका नाम क्या मां, फाल्कलैंड करंट, फाल्कलैंड करंट। सो ब्राजीलियन करंट एंड फाल्कलैंड करंट कन्वर्जिंग हियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लिस, क्या कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट मूव हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलना पड़ेगा इसको, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट और साउथ अटलांटिक करंट। दीपक, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऐसे जा रहा है, तो इतना में इधर क्या है, अफ्रीका है ना, अफ्रीका कोस्ट को आगे स्ट्राइक करेगा, अफ्रीका स्ट्राइक करने के बाद ऊपर चढ़ेगा, इधर में क्या हम, कौन सा है, बेंगविला आइलैंड है, उधर क्या होगा, फिर अपवेलिंग होगा इसीलिए इधर बेंगविला करंट बोलना पड़ेगा। फाइनली ये खत्म हो जाएगा, समझा, एनी डाउट सर। सेम, इसीलिए एक करंट को पढ़ना जरूरी अच्छा है। अंटार्कटिक से आ रहा है, आर्कटिक से लैब्राडोर कोल्ड आया था, लैब्राडोर एंड ग्रीनलैंड आया था, बट अंटार्कटिक से फाल्कलैंड आता है, वो कोल्ड करंट है। एग्जाम में पूछेगा
कोल्ड करंट, वार्म करंट, ऐसा पूछता रहता है। ऑनलाइन ठीक है ना? ठीक है ना मैं? अभी आपको क्या करूंगा, डायग्राम दिखा लूंगा, ठीक है ना? अभी डायग्राम देखो, राइट? सो दैट आपको इजी हो जाएगा। हम्म, चाहे तो ऊपर ही जा रहा है, नहीं तो नहीं। इसको झूम करते हैं फिर। ये है ना, ये है। है ना? इसका होता है क्या? हाँ, ठीक है, अभी क्या करेंगे। देखो ये क्या हो रहा है माँ, ऑनलाइन दिखा रहा होगा ना? इक्वेटोरियल करंट, द लैब्राडोर कोल्ड, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और कुछ है क्या डायग्राम? इधर तो है, शायद होगा, देखते हैं। हाँ, ये तो इंडियन ओशियन का है ना। हाँ, ये देख लो। ओए दीपक, इधर देख। साउथ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, इधर ग्रीनलैंड, इधर क्या मां, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन, कैनरी। इधर क्या हो रहा है, ब्राजील, नीचे से फाल्कलैंड, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बेंगुला, खत्म। इजी है। कौन पढ़ा रहा है? कौन है डन? समझ हो रहा है ना? इजी ज्योग्राफी कर रहा हूँ ना, नहीं कर रहा हूँ ना? थैंक्स बोलना, नहीं बोलना है? थैंक यू सारे। थोड़ा पानी पी लो। पानी नहीं पी तो सिर्फ वही पीते हैं, पूरा अबंडान। पीना मत, इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, एनी डाउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? इधर अभी चाहिए तो ये तो पैसिफिक है ना, अभी तो पैसिफिक करते हैं फिर, है ना? ब्रेक दो 1-2 मिनट, 1-2 मिनट ब्रेक ले लेना, देख लेना बस, देन पैसिफिक समझाता हूँ। 1-2 मिनट ब्रेक ले लो, थोड़ा पानी पियो। हाँ सर। हम्म हम्म, फिर वो आपको कोरियालिस फोर्स क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा मैं। कोरियालिस फोर्स, नहीं नहीं मैं याद नहीं, मैं कोरियालिस फोर्स में क्लाइमेटोलॉजी आता है। हाँ बस, वो मैं समझाऊंगा। क्या आवाज़ नहीं आ रहा क्या? है ना? आपको क्लाइमेटोलॉजी में कोरियालिस फोर्स आ जाएगा, उधर मैं समझाऊंगा। एनीवे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोरियालिस फोर्स ओवर देयर, राइट? साउंड कम आ रहा है क्या? क्या हो गया? आपका फ़ोन चार्ज लगना है। Right. Next, we are going to discuss about the Pacific Ocean. Pacific Ocean, है ना? Again same लिखो। Pacific Ocean divided into what ma? North Pacific Ocean and South Pacific Ocean. दीपक फास्ट लिखना है। North Pacific Ocean and South Pacific Ocean. Now write about the North Pacific Ocean currents. North Pacific Ocean currents. North Pacific currents.
व्हाट आर द नॉर्थ पैसिफिक करेंट्स? जैसे आपको अटलांटिक में आया था ना, जैसा ये वन इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट, ट्राई टू राइट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म, ब्रैकेट में W लिख लेना, नॉर्थ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल करंट है ना। सेकंड क्या मां, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बाद उधर क्या लिखा था, ब्राजीलियन करंट लिखा उधर, ठीक है, वो अलग है। सेकंड ये कुरोशियो करंट, कुरोशियो। थर्ड वोयोशियो, वोयोशियो करंट। देन और क्या है, वोयोशियो के बाद ये जाएगा ना ऐसा, ये ब्रिटिश कोलंबिया करंट, ब्रिटिश कोलंबिया करंट और अल्यूशियन करंट, अल्यूशियन करंट। देन ब्रिटिश के बाद क्या आ जाएगा मां, देन हाँ वोयोशियो को पहले इधर, ये इसका जगह में ये सीक्वेंस, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम। उधर क्या था नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, राइट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। देन अभी क्या लिखना, ब्रिटिश कोलंबियन, ब्रिटिश कोलंबियन करंट, और इसको क्या बोलना है, अल्यूशियन करंट, अल्यूशियन करंट। नेक्स्ट क्या सिक्स्थ वन क्या था, उधर कौन सा करंट अपवेलिंग हुआ था उधर अटलांटिक में, नॉर्वेजियन के बाद नीचे आया था कैनरी, ऐसा भी इधर हो जाएगा ना, कौन सा था, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। सो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म, कुरोशियो वार्म, वोयोशियो कोल्ड, then north pacific drift is the warm, then british columbia or aleutian is the warm, then california is the cold, upwelling, बस वो याद रख लेना, राइट। एंजॉय लग रहा है ना, क्लास तो अच्छा लग रहा है ना, राइट। चलो सर अभी देखो इसको हम डायग्राम निकालते, जैसा नॉर्थ अटलांटिक करंट तरह ही यही है, राइट। अगेन ये ऐसा करो, ये क्या मां, इक्वेटोरियल करंट, ये इक्वेटोरियल करंट ऐसा आ रहा है ना, सो इधर डिवाइड हो रहा है फिलीपीन के पास आने के बाद, तो नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है, नॉर्थ इक्वेटर, सॉरी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, सॉरी नॉर्थ पैसिफिक करंट। सो हियर व्हेन इट कम्स टू जापान, इधर इसको नाम क्या बोलना है, इसको कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट। इतना में ऊपर से एक कोल्ड करंट आ रहा है, उसका नाम वोयोशियो करंट is the cold current, they are converging, wherever warm and cold currents are converging, what happen, it is the fishing grounds for the world, right, temperate cyclones form hota hai udhar, fishes are in the subconscious stage, right। in the westerlies what happened, they are moving from the what, west to east, then आपको इसको क्या बोलना है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रिटिश कोलंबिया आइलैंड का आने के बाद अगेन डिवाइड होता है, एक ब्रिटिश कोलंबिया तरह ये साइड जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, कैलिफोर्निया आने के बाद अपवेलिंग हो जाएगा इधर, इसीलिए कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, राइट, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। हियर अपवेलिंग इज अकरिंग, हियर ब्रिटिश कोलंबिया, दैट्स व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी तो किसी नॉर्थ अटलांटिक करंट अच्छा सा पढ़ ले तो इजी। इक्वेटोरियल करंट जा रहा है फिलीपीन के पास, स्ट्राइक हो रहा है, एक तो ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए क्रोशियो करंट। व्हेन दे आर मूविंग अप फ्रॉम, ऊपर से क्या आ रहा है, एक कोल्ड करंट आ रहा है, उसका नाम वोयोशियो, एंड दे आर कन्वर्जिंग फिशिंग ग्राउंड हियर। इतना में वेस्टर्लीज influencing this, that's why they are moving from the west to east, then you are calling north pacific drift। then kya ma, when it comes to british columbia you are having the what, british columbian current, that is also warm, and one more current uske ek branch नीचे आ रहा है। when it comes to california क्या हो रहा है, upwelling, upwelling, whenever upwelling occurs what happened,
it is the what, so many plankton, these planktons are consumed by the fish, fishing industry increasing, but tourism industry impact, negatively impacting. Why? In a upwelling process, hydrogen sulfide is being released. If hydrogen sulfide is being released, if people inhale, they will be having the negative consequences on nervous system, राइट ये तो पूरा फिर ऐसा हो गया, ठीक है ना माँ. नेक्स्ट, नौ साउथ पैसिफिक ओशियन लिख लो. साउथ पैसिफिक ओशियन. नेक्स्ट वी आर हैविंग द साउथ पैसिफिक ओशियन. हेडिंग लिखो साउथ पैसिफिक ओशियन. साउथ पैसिफिक ओशियन करेंट्स. साउथ पैसिफिक ओशियन करेंट्स. उसमें फर्स्ट क्या करंट लिखना है अगेन ना, इक्वेटोरियल में, हाँ बस अभी ट्रैक में आ गया. साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट दैट इज वार्म. सेकेंड, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. 3, न्यूजीलैंड करंट, न्यूजीलैंड करंट, न्यूजीलैंड करंट. पेरू करंट, पेरू करंट. पेरू करंट is also called Humboldt current, Humboldt current, HUMBOLDT, Humboldt current. पेरू करंट, इट इज ए अपवेलिंग करंट, कोल्ड करंट. फाइनली क्या हो जाएगा माँ, वो ऊपर घुस जाएगा वो. हाँ इसमें ये लिखना है ना, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट. ये किसमें, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट. साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट होता है ना, राइट. अभी देखो, अभी इधर क्या माँ, ये दिस करंट इज व्हाट, नीचे आ रहा है ना, साउथ इक्वेटोरियल करंट. व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया है ना, इधर ईस्ट साइड से आ रहा है, इसीलिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. नीचे से क्या आ रहा है, कोल्ड करंट आ रहा है, राइट. दैट इज व्हाट मा, न्यूजीलैंड करंट, न्यूजीलैंड करंट. न्यूजीलैंड करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज, व्हाट हैपेंड, दे आर मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. देन यू आर व्हाट यू हैव टू कॉल हियर, साउथ. वेरी गुड, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट. ऐसा जा रहा है, राइट. इतना में क्या हम इधर साउथ अमेरिका, पेरू का पास आने के बाद अपवेलिंग हो रहा है, राइट. पेरू, देन अपवेलिंग, इट इज कोल्ड करंट, देन मूविंग अप, दे आर मूविंग अप. सो व्हेनेवर, पहले तो ये लिख लो, ये जो डायग्राम तो ड्रा कर लो. ठीक है ना माँ, राइट. यू कैन सी हियर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस डायग्राम. ये क्या हो रहा है देखो, कौन सा ले लो, ये ले लो कलर, ठीक है. ये क्या है माँ, देखो आप इधर इक्वेटोरियल करंट है ना, ये तो इक्वेटोरियल करंट है ना, एक नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है. इधर क्या हो रहा है, न्यू पपुआ न्यू गिनिया, इंडोनेशिया के पास जाने के बाद इतना में इधर एक ब्रांच ऊपर आ जाएगा, आने का फिलीपीन के बाद, जापान के बाद इधर क्या हो रहा है, कुरोशियो करंट. ऊपर से एक आ रहा है ना, वोयोशियो करंट. इधर क्या हो रहा है, एयर मास कन्वर्ज हो रहा है, वार्म कोल्ड फिशिंग लिए. इन इतना में वेस्टर्ली से क्या हो रहा है माँ, ये वेस्ट साइड ब्लो हो रहा है, इसलिए आप क्या बोलना चाहिए, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट. देन इधर देखा ना ऊपर, इधर ब्रिटिश कोलंबियन और अल्यूशियन करंट. ज्यादा से ज्यादा लोग क्या याद रख लेगा, ब्रिटिश कोलंबिया रख लेगा, अल्यूशन भूल जाएगा. आप अल्यूशन भी याद रख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्यूशन करंट ऑल्सो. इतना में क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया के बाद इट इज गोइंग टू बी अपवेलिंग, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग
California cold current finally mix up, and again here. So this south equatorial current near Australia, what happened ma? East का Australian current नीचे से न्यूजीलैंड cold current merge हो जाएगा. Then under the influence of the what ma? Westerlies moving to west to east, that is called ड्रिफ्ट. देन क्या हो जाएगा? पेरू का आने के बाद अपवेलिंग हो जाए, पेरू कोल्ड करंट और हम्बोल्ट करंट. राइट, डायग्राम पूरा काढ़ो मैं देखो, और कुछ रहे तो पूछना मुझे. Online and offline students, these two topics are very very important, right? Very much important. मुझे आप बिना देख के निकालना जरूरी है. दीपक, कर सकते हो क्या? Online students, once you can go through this, right? It is very much important. Even Great Barrier Reef also you can see this question has been asked over prelims exam. बिना देख के लिख सकते हो क्या? अटलांटिक करंट एंड पैसिफिक करंट करो. पैसिफिक करंट दोनों, because these topics plays very very important for your geography. If you are understanding this one, then everything is very easy ma, trust me. Otherwise you will be having certain problem, right? एक बार बिना देखे आपको ड्रा करो कि जितना आ जाएगा जितना. wherever you are writing either warm or cold, please mention it, right? राइट दीपक, देखता हूं. एक बार याद हो गया ना, इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें. दिक्कत तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, मैं आपको बेनिफिट के लिए कर रहा हूं मैं. आर्यन पूरा आनियन पोटाटो इधर ही ड्रा कर रहा है. ठीक है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं. ये तो होता है ना, क्या आर्यन? हाँ, कम से कम तो ये तो होता है यार, फ्रीनेस. ऑनलाइन प्लीज ड्रॉ दी North Atlantic, South Atlantic, North Pacific and South Pacific, because based on these two topics, other topics are very easy. If you are not understanding the North, South, that is the Atlantic and Pacific, then other topics फिर में connect करने में मुझे difficult हो जाएगा. मैं इसीलिए आपको टॉपिक समझो, तो कल में क्या हो जाएगा, सैलिनिटी टेम्परेचर ऑफ द ओशन टॉपिक, ये उसका ऊपर ही रहेगा. फिर इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है. देखो आप गो थ्रू द प्रीवियस ईयर, जितना याद होगा इतना लिखो. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, आपको लिए मैं मदद कर रहा हूं. देखते हैं कौन अच्छा निकालेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन.
है ना. इट इज ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस यार. अभी जब प्रीलिम्स टाइम में आपको इतना रिवीजन करने का जरूरी भी नहीं होता है. मीन्स यू आर सेविंग योर टाइम फॉर रिवीजन पर्पस हियर ओनली, rather than क्लास में करते रहो, rather than आफ्टर गोइंग होम अगेन यू आर लुकिंग इनटू द क्लास नोट्स, देन वेस्ट ऑफ टाइम. क्लास में ही प्रैक्टिस कर लो, अच्छा से निकलो. अरे इतना जल्दी निकला. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट. The एक student Deepak without foundation, just I gave in the crash course how they are drawing these things, you can see, right. जस्ट अभी क्लास में एक्सप्लेन किया पूरा बिना देख के लिखा है. यही तो आंसर है, और क्या है, बस इतना ही है. थोड़ा वर्ड्स फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करना है. आप देख सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ दी, बस और क्या है. एल्यूशन कैलिफोर्निया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, करंट, साउथ पैसिफिक, पेरू, हम्बोल्ड. कंग्रेचुलेशन, बढ़िया, गॉड ब्लेस यू. और क्या चाहिए सर आपका. अटलांटिक, अटलांटिक नहीं खड़ेगा, नॉर्थ एंड साउथ, बस इतना ही आपको इजी है. जो जिस जगह में वार्म कोल्ड होता है ना, वो जगह में वार्म कोल्ड लिखते रहो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग यार, मैं आपको नंबर मेरा शेयर कर रहा हूं. मेरा नंबर 8800581274. इफ समवन यार, या 8800581274 है ना. मेरा नाम रविंदर, टेलीग्राम नेम इज रविंदर IAS, टेलीग्राम का. यू कैन ज्वाइन. एंड आपको कुछ भी डाउट है मुझे फोन कर लेना, मैं 100% हेल्प करता हूँ यार. आपका नाम एंड इंस्टीट्यूशन नाम है तो मैं हम सपोर्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ. आप बिना पूछने को मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, बताओ, आप ही बताओ. आप पूछो तो मैं कुछ बता सकता हूँ ना सर. सर हो, मैडम हो, ऑनलाइन में जो भी है ना. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको सब पे सपोर्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ. ये मेरा नंबर है, आपको कुछ भी है मेरे को पूछ लेना, व्हाट्सएप भी कर लेना. सर मैं पर्टिकुलर जगह में एक डाउट है सर, प्लीज एड्रेस करो. टाइम पास करने के लिए मत नहीं करना है, बटरफ्लाई के लिए. ठीक है. ऑनलाइन राइट सर, ऑफलाइन, ऑनलाइन. आना है, जरूरी है. दीपक कैसे लिख रहा है, क्लियर करना है, राजस्थान का नाम रोशन करना है. देखा, देखो स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख के निकाल रहा है ना कुछ तो कुछ, मैं वही बोल रहा हूँ. स्टूडेंट्स आर राइटिंग एंड शोइंग देयर आंसर, यू आल्सो डू सेम थिंग. प्रैक्टिस हो जाएगा, कम से कम का आपके दिमाग में कुछ घुसेगा. सिंपली आप पेपर लेके सर बोल रहा है मैं लिखूंगा बस, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो भाड़ में जा. देखो अब वन मोर थिंग, नॉर्थ अटलांटिक करंट का बिना देख के मेरे सामने कर रहा है, देखो, राइट, करो, राइट, डन. और कभी एक बार रिवाइज कर देते हैं फिर, ठीक है ना. राइट, ओशियंस में क्या माँ, we are having the what, continental shelf, continental slope, then ocean deeps. Continental shelf क्या है, slope is 1 to 3 degree, right, or some 5, right.
So what happened here? Corals also present. Exploration of the minerals, oil, natural gas, other things present here, है ना. जो other things क्या इसका ऊपर है, sediments also present here, right? And anything else here, mostly the river sediment will be deposited. Slope is very less, and wherever the mountain is present along the parallel with these continental shelf, that width will come down. For example, north South America west side Andes mountains are present, क्या हो जाएगा, continental shelf width is narrowed. But when it comes to wide in the North America east side, there is no mountain, that's why continental shelf is broader, here narrower, right? Then we are having the continental slope is over 60 degree slope है, इसलिए you cannot deposit anything. Deposition is very less, negligible in the continental slope. Then we are having the deep sea, ocean deeps. ओशन डीप में डीप सी प्लेन्स, लाइक लैंड ऊपर रहता है ना, लाइक नॉर्थ गंगा प्लेन तरह, ये डीप सी प्लेन्स समुद्र में ओवर 60% यही होता है. Then we are having the what ma, ocean deep and ocean trench. You can see here ocean deep and ocean trench. Here when they are moving like cracks, wide, narrow, deep, very deep. Mariana Trench in the Pacific Ocean, the world largest trench is the Mariana Trench, right? Then we are having the ocean, किधर है ओशियन, किधर है, इधर है ना. ओशियन रिड्ज, मिड अटलांटिक रिड्ज इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिड्ज, ओवर 14,900 किलोमीटर, 960 किलोमीटर width. Wherever ridge comes, it is the combination of 2 to 3 plates. So Indian Ocean and Indian Ocean, Atlantic Ocean is having ridges, but when it comes to Pacific Ocean, ridges are not having. That means only single plate. किसी समुद्र में रिड्ज नहीं है बोले तो ये की प्लेट है, सिंगल प्लेट है. ridges are forming due to convergent or divergent plate boundaries. सही है. ठीक है ना मैम, अच्छा लग रहा है ना, यही है और कुछ नहीं है. वेरी इजी, द पॉइंट्स यू हैव टू कैच इट. जो बेसिक पॉइंट्स होता है ना, उसको आप कैच करना जरूरी है. हाँ, कोर पॉइंट्स को पकड़ना. अननेसेसरी पॉइंट्स क्यों बताओ, टाइम वेस्ट है ना. अभी कोरियालिस फोर्स, इधर डायरेक्शन देखो मा, कोरियालिस फोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, विंड मूवमेंट को ईस्ट साइड आपको डिफ्लेक्ट कर रहा है. ये कोरियालिस फोर्स आपको क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है ना. मुझे तो लिखाऊंगा आपको 10-12 पॉइंट्स, मेंस में भी क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स में बहुत बार आता है, उधर फिर हो जाएगा. ठीक है ना माँ. कोरियालिस फोर्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करता है. ठीक है ना माँ. ओशन करंट से देख लो, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. ये याद रख लेना डायरेक्शन, बिकॉज इसको ऊपर क्या क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में, राइट. देन वी आर हैविंग द अटलांटिक ओशियन. सो व्हाट आर द फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग फॉर द ओशियन करंट्स, आप लिखा है तो देखो. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन का अट्रैक्ट करता है, पुल करता है. देन डिफ्लेक्शन, नॉट डिफ्लेशन. डिफ्लेशन बोलो तो इकोनॉमी वर्ड है. डिफ्लेक्शन मींस दे आर डिफ्लेक्ट. फॉर एग्जांपल अभी मान लो, राइट, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं, आपको कैच पकड़ना है. सो मैं पेन को मैं सीधा पकड़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा मां, तो समवेयर इट विल बी टिल्टिंग. देखो टिल्ट हो रहा है ना, उसको डिफ्लेक्ट बोलता है. हाँ, उसको कोरियालिस फोर्स बोलते हैं, समझा, राइट. सो इट डिफ्लेक्ट, राइट. डिफ्लेक्शन इज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू विंड मूवमेंट एज वेल एज द ओशियन करंट्स. लिखते रहना भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स. देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्या क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर में, तो वो ऊपर स्पेस के, हाँ हाँ. देन
देख रहा नहीं अब? प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन इज द ब्रॉडर टर्म, रेनफॉल इज पार्ट ऑफ द प्रिसिपिटेशन। वो फिर वो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाता हूँ, किसी जगह इधर छोड़ रहा है ना, मैं क्लाइमेटोलॉजी में समझाता हूँ। इसीलिए यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास कंटिन्यूअसली। एक क्लास भी मिस हो तो किसी किसी पॉइंट छूट जाता है, राइट? जन्मा आइसोलेशन नहीं, इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन सनलाइट का होता है ना, वो रेडिएशन को अर्थ ऑब्जर्व करता है ना, उसको इंसोलेशन बोलता है। इंसोलेशन, प्लीज राइट डाउन। इंसोलेशन, द अर्थ ऑब्जर्व, अर्थ ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, द अर्थ इज ऑब्जर्विंग सर्टेन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को हम क्या बोलना पड़ेगा? इंसोलेशन। मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग। हाउ मेल्टिंग ऑफ आइस, बता सकते हो क्या? हाउ मेल्टिंग ऑफ आइस प्लेस वाइटल रोल इन द ओशियन करंट मूवमेंट? एनीवन कैन आंसर इट? एग्जांपल बताओ। लैब्राडोर करंट, कोल्ड करंट, वोयोशियो करंट, फाल्कलैंड करंट, न्यूजीलैंड करंट, ये तो कोल्ड ही है ना। सो ऊपर से आ रहा है। नहीं नहीं, ये अपवेलिंग को, अपवेलिंग तो कोल्ड है, बट वो ऊपर से नहीं आ रहा है ना। लैब्राडोर कोल्ड तो ऊपर से आ रहा है, स्नो से जगह ऐसे आ रहा है ना, बट अपवेलिंग तो बीच में आ रहा है, अफ्रीका पास हो रहा है, कैनेडी के पास। वो कोल्ड नीचे पानी है ना, वो ऊपर आ रहा है। समुद्र ले लो, ऊपर वार्म वाटर रहेगा, नीचे ठंड पानी रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, कुछ ये नीचे गोल्ड पानी है ना, वो ऊपर आ जाएगा, वार्म को पुश करेगा, इधर जाएगा, कोल्ड ऊपर आ जाएगा, बाद में ये भी गर्मी हो जाएगा, फिर ये जल जाएगा। समझ समझ हो गया ना? एनी डाउट हियर? राइट नाउ, नाउ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ अटलांटिक में क्या क्या करंट्स है? व्हाट आर द करंट्स आर प्रेजेंट? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटीलस करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ, वेरी गुड, ग्रीनलैंड एंड लैब्राडोर, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन करंट, कैनरी करंट, बस हो गया, इसको मिक्स हो गया। देन साउथ अटलांटिक करंट, इक्वट, वेरी गुड, सुपर, ब्राजीलियन, नहीं, फाल्कलैंड, हाँ, क्या ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट, वेरी गुड, हाँ, आ गया। इधर अफ्रीका के बाद क्या हो रहा है? कुछ तो अपवेलिंग हो रहा है ना, बेंगविला, वो कोल्ड और वार्म, अपवेलिंग आ गया, कोल्ड, बस, राइट, खत्म हो गया। राइट नाउ पैसिफिक, पैसिफिक में क्या है? अगेन नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। अभी नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ऊपर क्या जा रहा है? कुरोशियो, वो इश्यू किधर से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है, वो आइस वाला था, स्नो मेल्ट वाला। देन नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, देन वेरी गुड, ब्रिटिश कोलंबिया, आर अल्यूशियन करंट, कैलिफोर्निया के बाद आने के बाद कोल्ड करंट, खत्म, राइट, अपवेलिंग हो जाएगा। देन साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक क्या? ये वेरी गुड, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, न्यूजीलैंड कोल्ड करंट, वेरी गुड, पेरू कोल्ड करंट, आर हम्बोल्ट करंट, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम बोरवाया था, ठीक है ना? आ जाएगा, बट ये तो कोल्ड करंट के पास ही है ना, है ना? अच्छा से हो गया ना? वही तो बात होता है, राइट? हाँ, बहुत अच्छा हो गया। कौन पढ़ा रहा है? इंद्र सर, हाँ? डोगरन, ठीक है ना वाह? हाँ, हाँ, अच्छा है ना? याद हो गया ना? बस, हाँ, एक बार रिवाइज करे तो हो जाएगा, और क्या है, बस। हाँ, ये इजी हो जाएगा। वार्म कोल्ड किस जगह कौन सा है? देता हूँ, बट कल परसों देता हूँ आपको, थोड़ा अभी कल का आज का थोड़ा, हाँ, कल आज थोड़ा आपको मेरे बारे में आदत हो गया है ना, अरे ये सारा ऐसा होता है, मेरा माइंड ट्यून हो रहा है,
कल मैं क्या करूँगा, आप सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द ओशन पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन पूछूंगा 2-3 क्लास का, तो आपको इजी हो जाएगा। तो कल हम मोस्टली ओशनोग्राफी ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो अभी ये वो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी में क्या होता है, फिर ओशन करंट टॉपिक आता है, तो जरूरी करने का जरूरी नहीं है। इक्वेटोरियल में गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब ओशन कोल्ड को जा रहा है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, कोल्ड पानी नीचे आ गया तो नीचे वाला कम हो जाएगा। सो बैलेंस हमेशा होता रहता है, समझा ना। तो टेम्परेचर का ओशन करंट को वो मैटर होता है ना। तो मैं वही बोल रहा था, बच्चा रिवीजन करना है, टीचर को ढंग से, एक अच्छा से टीचर को पकड़ो, काम कर लो। नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे चाहिए 5 साल का प्रिपरेशन, बोल तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना सर। पढ़ो अच्छा सा, एनीवे यू आर हैविंग माई नंबर, है ना, है ना, वो देख लिया तो आपको इजी हो जाएगा। बस आप ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी आल्सो वेरी डेंजर। अरे हमको ये हो गया या और कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक डूइंग इन वॉर एंड, मुझे आता नहीं और आप पढ़ना है, जाको देखो, मैं पढ़ाया हूँ ना एक बार, प्रीवाई को देखो किसी जगह आया क्या। कल इंडियन ओशन करंट का पढ़ाऊंगा, थोड़ा 5 मिनट में हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ओशनोग्राफी, है ना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर देता हूँ आपको, चिंता मत करो, है ना, बट मिलते रहो, है ना। एक यूट्यूब में मेरे को चैनल भी है, कभी कभी मजाक में डाल देता हूँ उधर, ये यही है उसका नाम, यही नाम ऊपर है, रविंद्र ऐसे यूट्यूब चैनल में कर लेना। जस्ट मजाक मजाक में टूर ट्रिप का डालता रहता हूँ ब्लॉग, अभी ज़्यादा डाला है नहीं, सब्सक्राइब कर लेना उसमें। अच्छा सा मेरा फॉलोइंग किधर जा रहा हूँ आपको पता हो जाएगा। RAVINDAR, गाली मत देना उसके ऊपर, ट्रिप बहुत मजा कर रहे थे। मिलते हैं, आया है। आपका मोबाइल नहीं है पूरा बटर ओनली फॉर बटरफ्लाई, हाँ, उसमें टॉपर्स का डाला हूँ ना, उसमें अभी ये टॉपर्स के है ना, उसमें डालूंगा आपको टॉपर्स के वीडियोस इसमें। वो पोस्ट किया था, टॉपर्स का रैंक्स भी किया था ना उसमें, देखा है। हाँ ये इसमें, हाँ इसमें पोस्ट किया था, ये इंडिया का डाला था ये रैंकर, ये ये आपका राजस्थान का बंदा स्टूडेंट, पहले डालता था, अभी ये बीच में डाल रहा हूँ, बहुत बच्चा चल गया यार यूट्यूब से। अरे वो सेम नेम, टेलीग्राम, टेलीग्राम का यूट्यूब का यही है, सेम स्पेलिंग देख लो। अभी मैं टॉपर्स को उधर उस पर वीडियो डालूंगा। ये बच्चा कुछ नहीं है ना, हमेशा मेरे साथ मेरे पीछे पड़ता ही रहता है बंदा, इसलिए वो उनको रैंक आ गया था। मैं वही बोल रहा हूँ, टीचर से मिलते रहो मिलते रहो मिलते रहो। स्टूडेंट्स क्या करता है पता है ना दीपक, 4 दिन पढ़ता है, बाद में छोड़ देता है, भूल जाता है भी टीचर को भी, बाद में प्रॉब्लम आता है, सर मेरे को ये दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत, मैं क्या करूँ। एक बीच बीच में मिले तो भी हम कुछ सपोर्ट कर सकते हैं ना। ऑल ऑफ सडन आके पूरा 1 ईयर का पूरा प्रॉब्लम मेरे सामने रख तो मैं क्या करूँ, है ना। मेरे को भी प्रॉब्लम है ना लाइफ में। हाँ टेलीग्राम में, टेलीग्राम में भी डाला हूँ, आप देखो, है ना। और कैसे सेवा कर सकता हूँ मैं, कुछ नहीं सर, सेवा मत देना, ज़्यादा हो गया सेवा, हमको छोड़ दो, यही है ना। हाँ कि ज्योग्राफी में आ गया। राइट, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। दे बच्चा क्या बोल रहा है, ज्योग्राफी में डर लगता था, आके बोलो उनको लोग को, ज्योग्राफी में डर लगता था अभी नहीं लग रहा है, कौन है। है ना, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जितना टाइम हूं इतना हूं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, है ना, आप चिंता करने का जरूर। अरे GC लेंगे BC लेंगे कुछ नहीं है यार, रविंदर सर लियांग पल्ले बस। और क्या, क्या सर और क्या है इसमें।
अभी मैं जो बोला हूँ आपको नोट्स में है नहीं, ये बुक्स में देख लेना, बाद में मुझे पूछ लेना। मेरा टॉपर से ही है यार, ये क्या है ना सर? बड़ाई नहीं है इधर, हम बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, जो है वो बोल रहे हैं सीधा। कंटेंट रहो तो दिमाग में कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है ना, राइट? थैंक यू ऑल, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, विल कैच अप टुमारो विद द न्यू टॉपिक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।